टीवी ऑटो शो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट मुग्धा मिश्रा। सबसे पहले देखते हैं क्या खास है आज के शो में। वन 125cc स्कूटर सेगमेंट काफी तेजी से बढ़ रहा है। इनफैक्ट लगभग सारे ही टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर के प्रोडक्ट्स आपको इस सेगमेंट में मिल जाएंगे। हीरो मोटोकॉर्प ने हाल ही में लॉन्च किया Xoom 125 और किंगशुक दत्ता पता कर रहे हैं कि अगर आप स्कूटर खरीदना चाहते हैं तो क्या आपको Xoom 125 लेनी चाहिए। Every 1 in 3 scooters sold in India is a 125cc scooter, and today we are riding the latest launch in the 125cc scooter segment, the Hero Xoom 125. So earlier there was the Xoom 110, now we are riding the Xoom 125, and in the next couple of months Hero promises that it will launch the Xoom 160 as well. Let's ride the scooter and tell you how it performs. Let's have a look at the scooter. It looks stylish, it looks sporty, and Hero says that the design has been inspired by that of the falcon. Yes, a bird of prey, and yes, you can see few elements like that. The front end in particular is very sharp and athletic, and apart from that, Hero also says that it is the first scooter in the segment to get an LED projector headlight and these signature DRLs which create for a nice lighting signature. What is also interesting is the fact that this gets sequential LED winkers. So let me show you. There you go. So you see this? These are sequential LED winkers, first in the segment, right? And if you go to the side profile of the scooter, so it reminds you of the Xoom 110, but the lines, the cuts and the creases are very nice and athletic. So as far as the presence of the scooter is concerned, it's nice and we quite like it. So let's quickly talk about the features that the Xoom 125 gets. Starting with this nice stylish instrument console which is fully digital. So you have this console here and it's digital. You also get turn-by-turn navigation, Bluetooth connectivity, and you have this display for fuel efficiency, range, trip meter 1, trip meter 2, and of course you show the date and time as well, right? Apart from that, these switch gear, it's very stylish, and the dual tone color looks really stylish, right? Also you have two holders here, cubby holes, and you have this mobile charging port here, right? It looks like an afterthought, so it's not integrated into the scooter. It looks like somebody just forgot to put a mobile charging port, and this seems to be an afterthought, so this is not very nice or doesn't feel quite premium. And there's a 17-liter under-seat storage space. The storage space doesn't get an USB port, which is slightly surprising, and you also get an external fuel filler cap. So this should be okay for a full-size helmet or at least a half-face helmet. That's the list of features that you have on the Hero Xoom 125. And talking about the brakes, tires and the suspension, well, the scooter gets 14-inch tires which are quite thick and chunky. You have a disc brake up front on the top spec model. You also have telescopic suspension up front and an offset monoshock at the rear. So let's ride the scooter and see how it performs dynamically on Delhi roads. So Hero says that the Xoom 125 is a completely different scooter from the Xoom 110, right? So it gets a 125cc engine, makes close to 10 odd horsepower and 10.4 Newton meters of peak torque. Now Hero says this is the fastest scooter when you consider the 0 to 60 kilometers per hour sprint, which is done in 7.6 seconds, right? And yes, while we were riding the scooter, it did feel quite peppy and engaging to ride because the build up of the speed, the acceleration is quite nice, it's quite interesting, and you generate speed very quickly on the scooter. So right off the start line at say a traffic signal, you'll be the first one to take off, right? So that is something which is really nice on the scooter. And yes, when you're pottering about in town, it is comfortable, the seat is nice and wide, and the brakes also, they're quite sharp, they have a decent bite, the progression is very good. Yes, we like how the scooter performs. The ride quality could have been slightly better. Right now I feel it's on the stiffer side of things, so it could have been tuned to be a slightly softer, but it's not a deal breaking situation. So overall, the dynamics of the Hero Xoom 125 is quite nice, and yes, you will enjoy riding the scooter, especially
on traffic-laden roads of Delhi. Talking about the ergonomics, the Zoom 125 feels quite comfortable. So the seat that you see here is quite nice. You sit here, you sit upright, it's comfortable. You have enough space for your feet on the footboard, and the handlebar is not exactly wide, but it's nice and narrow, and that makes it easier for you to maneuver the scooter through traffic, right? So overall, the ergonomics of the Zoom 125 is comfortable, and I don't think you'll have problem putting in long hours of commute on this scooter. The Hero Zoom 125 is offered in two variants, VX and ZX. The VX is priced at 86,900 rupees, while the ZX is priced at 92,900 rupees. The pricing is decent and is at par with the rest of its rivals like the TVS Ntorq 125 and the Suzuki Avensis 125. So we spent a Monday morning riding the Hero Zoom 125 in Delhi, and yes, it is an impressive product. It is priced par for the course. The feature set is nice, the performance quite likable indeed. So as an overall package in the 125cc scooter segment, it is impressive, but it has to deal with established rivals in its segment, right? So how does it fare against the rivals? Well, that is a story for another day. Till then, if you want to consider a 125cc scooter, the Zoom 125 should be in your consideration list. वेलकम बैक। आप देख रहे हैं द NDTV ऑटो शो। रिवोल्ट मोटर्स ने लॉन्च किया है अपनी EV बाइक रिवोल्ट RV। अमूल्या बता रहे हैं आपको इसकी सारी डिटेल्स। डिज़ाइन बहुत सिंपल है, जस्ट लाइक कम्यूटर बाइक, बट देयर आर सम एलिमेंट्स दैट स्टैंड आउट। फॉर एग्जांपल, एक राउंड LED हेडलैम्प मिल जाता है जिसमें एक बहुत ही अच्छा राउंड और ब्राइट DRL कंपनी ने फिट किया हुआ है। उसके साथ ही दोनों साइड पे बहुत ही स्लीक डिज़ाइन वाले इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। बॉडी की बात करें तो मस्कुलर पैनल्स हैं, बट देयर इज़ अ फ्लैट साइड पैनल जो थोड़ा विंगलेट्स वाला डिज़ाइन देता है, विच सीम्स गुड। सीट की बात करें तो एक बहुत ही फ्लैट सीट का डिज़ाइन है विच मर्जेस वेल विद द टेल लैम्प एंड द इंडिकेटर्स। हैंडल बार्स थोड़े ऊपर की तरफ हैं जहाँ पे आपको सीटिंग के टाइम पे एक अच्छा कंफर्टेबल सीटिंग पोजीशन मिल जाता है, बट इट कैन बी अ बिट टैक्सिंग व्हेन यू आर गोइंग फॉर अ लॉन्ग डिस्टेंस राइड। थोड़ा शायद शोल्डर पे आपके प्रेशर आएगा विच यूल फील इन अ लॉन्ग डिस्टेंस। उसके साथ ही बैठने में आप बहुत ही कंफर्टेबल रहोगे बिकॉज इट गिव्स अ बेंच लाइक पोजीशन फॉर यू। इसके डिज़ाइन की एक और खासियत है कि इसमें आती है रिमूवेबल बैटरी, पर उस बैटरी को आप रिमूव कैसे करोगे? उसका तरीका ये है कि होल में आप चाबी डालो जो बॉडी के लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट है। आप उसमें चाबी डाल के उसको जब क्लॉकवाइज रोटेट करोगे तो ऊपर वाला पैनल जो टैंक के ऊपर है वो खुल जाता है। उसके नीचे आपको एक और पैनल मिलेगा जिसको आप उठा के बैटरी को रिमूव कर सकते हो अगर आपको बैटरी रिमूव करनी है तो। अदरवाइज देयर इज़ द ऑप्शन टू चार्ज द बाइक एज इट इज़। उसके लिए आपको राइट साइड पे एक 3-पिन चार्जर दिया गया है। तो इस बाइक में ब्रांड ने कुछ खास फीचर्स दिए हैं, स्टार्टिंग विद द हाईलाइट। इसमें एक 6 इंच का LCD स्क्रीन मिल जाता है जिस पे आपको बाइक से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, इंक्लूडिंग द मोड्स और द नंबर्स दैट यू आर स्विचिंग गियर्स इनटू। बाय गियर्स आई मीन द राइडिंग मोड्स विच आर रिप्रेजेंटेड बाय 1, 2 एंड 3। इसके साथ साथ इसमें आपको एक रिवर्स मोड मिल जाता है जो थोड़ा कन्वीनियंट हो जाता है जब आप बाइक को पीछे ले जाना चाहते हो। एक और ख़ास बात इस बाइक की है कि जब भी आप ब्रेक्स को पूरा कंप्रेस करते हो तो बाइक्स पूरी तरह से पावर कट कर देती है। उस समय अगर आपका थ्रॉटल पूरी तरह से ट्विस्टेड भी है तो भी बाइक में कोई पावर नहीं आएगी। ये सेफ्टी के लिहाज से काफ़ी अच्छा फीचर है, बट उससे रिकवर करने में बाइक को थोड़ा टाइम लगता है। अगर आप चलाते चलाते लेट्स से ब्रेक को कंप्रेस कर रहे हो और थ्रॉटल पूरा ट्विस्टेड है तो पावर कट हुई, बट जब आप वापस से ब्रेक छोड़ने के बाद थ्रॉटल लेते हो तो बाइक को रिकवर करने में थोड़ा टाइम लगता है, विच गेट्स अ बिट ट्रिकी एंड अनोइंग एट टाइम्स। अब हम बात कर लेते हैं बाइक के ऑन पेपर स्पेक्स की, स्टार्टिंग विद द बैटरी पैक। इसमें आता है एक 3.24 किलोवाट आवर का बैटरी पैक जिसकी क्लेम रेंज है 150 किलोमीटर तक की। अगर आप इस बैटरी को पूरी तरह से ड्रेन कर देते हो तो आप इसको चार्ज कर सकते हो विद इन 3 आवर एंड 30 मिनट्स। अगर आपको फास्ट चार्जिंग चाहिए तो कंपनी एक फास्ट चार्जर का ऑप्शन देती है जो इसको 1 आवर और 20 मिनट में चार्ज कर देता है। इस बैटरी की पावर ट्रांसफ़र होती है एक इलेक्ट्रिक मोटर में जो कि 45 न्यूटन मीटर तक की टॉर्क प्रोड्यूस करता है और बाइक को 85 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड पे ले जा सकता है। इसके लिए बाइक में 3 राइडिंग मोड्स आते हैं, इको, स्पोर्ट और सिटी। स्पोर्ट मोड हाईएस्ट है जिसमें आप 85 किलोमीटर तक को टच कर सकते हो। इस स्पीड को कंट्रोल करने के लिए बाइक में दोनों एंड पे डिस्क ब्रेक्स आते हैं। द फ्रंट वन इज़ अ 240 mm डिस्क और द रियर वन इज़ अ 40 mm डिस्क। अगर आप इन दोनों डिस्क को सक्सेसफुली यूज़ कर रहे हो तो यू कैन हैव अ गुड कंट्रोल ऑन द बाइक। जहाँ तक सस्पेंशन की बात है तो फ्रंट एंड में आते हैं टेलीस्कोपिक फोक्स,
रेयर एंड में ट्विन शॉक एब्जॉर्बर्स, बट दीज आर जस्ट ऑन पेपर नंबर्स। एक चीज़ मैं भूल गया, इसमें रेयर एंड पे 80 सेक्शन टायर्स आते हैं विच आर थिकर देन अ नॉर्मल कम्यूटर बाइक। बट हाउ डू दिस स्पेक्स प्ले आउट इन द हैंडलिंग ऑफ द बाइक, लेट्स फाइंड आउट। अब हम बात कर लेते हैं बाइक की हैंडलिंग की। तो जैसे ही आप इस बाइक पे बैठते हो आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि इट इज़ अ वेरी लाइट बाइक एंड वेरी इजी टू हैंडल कंसिडरिंग द सीट हाइट ऑफ 790 mm। बट जब आप इसको लेके थोड़ा आगे बढ़ोगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि हैंडल बार्स काफ़ी ऊँचे हैं, जो कि थोड़ा एक कंफर्टेबल सीटिंग पोजीशन दे देते हैं अलॉन्ग विद द फुट पैक। द राइडर ट्रायंगल इज़ वेरी गुड। जब आप इस बाइक को लेके चलाना शुरू करोगे तो इनिशियली जब आप थ्रॉटल ओपन करते हो तो थोड़ा जर्की फील होता है, विच ऑन द ट्रैक माइट बी ओके, बट ट्रैफिक में ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है बिकॉज ट्रैफिक में आपको नहीं पता कि आपके सामने कौन कितनी दूर पे होगा या आपकी बाइक कितनी ज़्यादा आगे जाएगी। बट जैसे ही आप चलाना शुरू करोगे द प्रोसेस गेट्स स्मूदर ओवर द टाइम। ब्रेकिंग की जहाँ तक बात है तो थोड़ी हाई स्पीड पे भी जाने के बाद आपके ब्रेक्स आपका पूरी तरह से साथ देंगे। जो दोनों डिस्क ब्रेक्स हैं वो बहुत अच्छी तरह से काम करते हैं इस मामले में। जहाँ तक सस्पेंशन की बात है तो उस पर कमेंट करना अभी थोड़ा ऑकवर्ड है मेरे लिए, बिकॉज अभी जब तक हमने बाइक सिर्फ ट्रैक पे टेस्ट की है, रोड टेस्ट के लिए थोड़ा हमें वेट करना पड़ेगा। नाम है शॉकवेव, जितनी क्रेजी दिखती है शायद मार्केट को भी उतनी ही क्रेजी बना दे, बिकॉज दिस इज इंडियाज फर्स्ट इलेक्ट्रिक एंड्यूरो बाइक आ रही है अल्ट्रावायलेट की ओर से। इंट्रोडक्टरी कीमत रखी गई है मात्र 1.5 लाख रुपए एक शोरूम, जो सीमित रहेगी पहले 1000 कस्टमर्स के लिए। लेट मी टेक यू थ्रू व्हाट्स स्पेशल, और ये आएगी मार्केट में लगभग 2026 के स्टार्टिंग में। आप अभी से इसे प्री बुक करा सकते हैं। ड्यूल प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, वेरी मिनिमम फेयरिंग और वेट मात्र 120 किलो। सामने की ओर कलर TFT मिल जाएगा, बहुत सारे कनेक्टेड फीचर्स दिए गए हैं, फ्लैट हैंडल बार विद दिस शॉकवेव लेटरिंग राइट इन द मिडल। रेंज कंपनी कह रही है लगभग 165 किलोमीटर और पावर आउटपुट 14.7 हॉर्स पावर। 19 इंच फ्रंट व्हील और रियर 17 इंच का दिया गया है। राइज मोटो के टायर्स लगाए गए हैं। आपको ड्यूल चैनल ABS मिल जाएगा, जहां आप पीछे वाला स्विच ऑफ कर सकते हैं। मोनोलिंक सस्पेंशन 180 मिलीमीटर का ट्रैवल, 37 मिलीमीटर्स के फ्रंट टेलीस्कोपिक सस्पेंशन से आपको ट्रैवल मिल जाएगा 200 मिलीमीटर्स का। 2 कलर ऑप्शंस, क्रॉस स्पोक व्हील्स और फ्रंट सस्पेंशन को पार्शियली ढका गया है। आपको एडवेंचर मोटरसाइकिल वाली बीक भी दिख जाएगी विद एक्सटेंशंस फ्रॉम द टैंक। 2 कलर ऑप्शंस में मिल जाएगी आपको शॉकवेव। वहीं टॉप स्पीड की बात करें तो 120 किलोमीटर एन आवर। इन क्यूब्स की मदद से आप एक्सेस कर सकते हैं इसका TFT स्क्रीन। प्रोफाइल काफ़ी नैरो रखा गया है, इट्स अ लॉन्ग सीट, और ये रोड लीगल बाइक है जहां आपको 2 सीटर ऑप्शन भी मिल जाएगी। इट्स अ चेन ड्रिवन सिस्टम और रोटो पेडल डिस्क का इस्तेमाल हो रहा है फॉर बेटर कूलिंग एफिशिएंसी। नाउ दीज आर नॉट फुल नॉबी टायर्स, लेकिन दीज आर ऑफ रोड स्पेसिफिक टायर। ऑब्वियसली आप खरीदने के बाद इसे चेंज ज़रूर कर सकते हैं, बट दिस मोटरसाइकिल लुक्स वेरी प्रॉमिसिंग, स्टाइलिश, और साथ ही साथ शायद एक नए सेगमेंट को ये केटर कर सकती है। ऑफ रोड स्पेक्स भी काफ़ी खास होने वाले हैं एंड दिस विल काइंड ऑफ शो अल्ट्रावायलेट्स वे इनटू द फ्यूचर। साथ ही साथ अल्ट्रावायलेट ने एक इलेक्ट्रिक स्कूटर टेसरेक्ट के नाम से भी आज अनवील कर दी है। ऑल दीज प्रोडक्ट्स विल गो ऑन सेल अराउंड 2026 फर्स्ट क्वार्टर, लेकिन आप इन्हें प्री बुक कर सकते हैं। दिस इज फ्रॉम अल्ट्रावायलेट, नाम है टेसरेक्ट और लॉन्च की गई है मात्र 1,20,000 रुपए एक शोरूम की कीमत पे। चलिए बताते हैं व्हाट मेक्स इट द मोस्ट एडवांस स्कूटर इन द एंटायर वर्ल्ड, और ये आपको मिलनी शुरू हो जाएगी लगभग Q1 of 2026। लेट्स डीप डाइव एंड टेल यू रेंज, फीचर्स, क्यों इसे मोस्ट एडवांस स्कूटर कहा जा रहा है। क्लोजली देखिए, देयर इज अ कैमरा इन फ्रंट। दिस इज नो ऑर्डिनरी कैमरा। इस स्कूटर में फ्रंट और रियर रेडार सेंसर मिल जाता है, जिसके बदौलत आप लगभग ADAS ऑफ 2 व्हीलर्स कह सकते हैं। ब्लाइंड स्पॉट, लेन चेंज अलर्ट, कोलिशन अवॉइडेंस, रिवर्स अलर्ट, बहुत सारे सेफ्टी फीचर्स आपको मिल जाते हैं थैंक्स टू दिस रेडार बेस्ड सेंसर। ऑब्वियसली फुल LED सेटअप का इस्तेमाल हो रहा है। राइड्स ऑन 14 इंच alloy wheels and this still looks like a little bit of concept stage, क्योंकि अभी भी 1 साल बाकी है to come to production and delivery। हालांकि आप इसे प्री बुक कर सकते हैं, कंपनी ने प्री बुकिंग स्टार्ट कर दी है इस स्कूटर के लिए। ये जो 7 इंच का TFT दिया गया है, दिस इज टच enabled, मतलब आप टच से भी इसे एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन यू ऑल्सो गेट टॉगल स्विचेस जिससे आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। द सीट लुक्स स्पेशियस, लॉन्ग, कट्स एंड क्रीजेस आपको बहुत मिल जाएंगे इस स्कूटर पे एंड दिस लुक्स लाइक अ मैक्सी स्कूटर। मतलब ओवरऑल फॉर्म फैक्टर मुझे बहुत हद तक एरोक्स की याद दिला रहा है, उतनी ही कद काठी की ये स्कूटर लग रही है। पीछे भी काफ़ी इंटरेस्टिंग डिज़ाइन वाले LED टेल लैम्प्स दिए गए हैं। दिस लुक्स लाइक रिवर्स वाई शेप। अंडर सीट स्टोरेज इज
34 लीटर्स, मतलब 2 फुल साइज हेलमेट्स आ जाएंगे। आपको ABS मिल जाएगा फ्रंट में, डुअल डिस्क सेटअप, मतलब फ्रंट एंड रियर व्हील में आपको डिस्क सेटअप मिल जाएगा। एंड दिस स्कूटर कम्स विद अ होस्ट ऑफ सेफ्टी एंड कनेक्टेड फीचर्स। अब चलिए परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। नाउ दिस वन गिव्स अ क्लेम्ड रेंज ऑफ 261 किलोमीटर्स अगेंस्ट वन फुल चार्ज, और ये अब तक की सबसे ज़्यादा क्लेम वाली इलेक्ट्रिक स्कूटर है भारतीय बाजार में। 0 to 60 किलोमीटर्स एन आवर इन लेस देन 3 सेकेंड्स, 2.9 टू बी प्रिसाइज। जो आउटपुट है 20 हॉर्स पावर का दिया गया है। दिस इज ऑल्सो कंपेरेबल टू अ 160 to 200 सीसी मोटरसाइकिल। और टॉप स्पीड की बात करें तो कंपनी कह रही है 125 किलोमीटर्स एन आवर। डैश कैम भी मिलेगा इस स्कूटर में, लेकिन फॉर दिस यू हैव टू वेट टिल 2026। By when will we expect it in the market? You have said that it's going to cost 1.45 lakhs, Right. but the first 10,000 vehicles at 1.2 lakhs. Yeah, Right? I'll let you do the talking. So the Tesseract actually was conceived some time back, and we've been working on this. The idea was very straightforward, that can we build advanced scooters, right? And what does it take to build an advanced scooter? What capabilities are required? And in terms of sensing technology, whether it's radars, whether it's the omni directional mirrors, we're talking about whether it's the cameras on the vehicle, right? And the connected technology that we already have on the F-77s. So we wanted to pull all of that together, and the Tesseract is that complete form of a exciting product in this category, which for a long time has not seen too much action. Tell us more about Shockwave, because that's something that will definitely, the enthusiasts, biking enthusiasts will definitely find very interesting. Right. So the Shockwave was as a concept, right? As an idea for us, we wanted to bring in something that's exciting and at the same time accessible to everyone. And usually those two things are very hard to pull off, right? In a single package, in a single product. And we went back in time to see what did people love. And those two-stroke motorcycles is exactly what people love, right? And we also love them. In fact, among ourselves, we still have some of those motorcycles, right? And for us, it was about, can we bring back the same feel, that experience, that joy of riding those motorcycles, but in a futuristic manner? What would it be like to have those motorcycles in the future? And that is where the idea of, Shockwave came about. So the Q1 2026, we're talking about the delivery starting in different parts of the country. And we're working towards that. The vehicles are already going to be seen on the streets because our test vehicles are always seen. द NDTV ऑटो शो में आज के लिए इतना ही, लेकिन ऑटो पर हमारी कवरेज जारी है NDTV ऑटो के YouTube चैनल पर, तो उसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल और हमेशा चलाइए गाड़ी सेफली। सी यू नेक्स्ट वीक, बाय बाय।